हेलो दोस्तों। आज से मैं अपनी लीड कोड की टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो जैसे जैसे मैं सवाल लगाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता जाऊँगा। सो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द कोड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज आस्किंग। सो it is basically asking nothing. I will summarize the question for you. Like guys, दो एरे गिवन है nums1 एंड nums2। उनकी लेंथ गिवन है m एंड n। सो जो भी दोनों एरे हैं वो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो जो m है वो nums1 की लेंथ है और जो n है वो nums2 की लेंथ है। ओके, सो हम लोगों को nums1 में ही मर्ज करनी है दोनों एरेज विच शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर इन एज ए रिजल्टेंट। ओके, सो जो एग्ज़ाम्पल गिवन है इसी को समझते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। ओके, ओके, so in first array the example is given is as 1 2 3 0 0 0 and 2 5 6 is nums2. So length of nums1 is m and length of nums2 is n. So basically we have to sort these two arrays in a sorted order. So we will use three pointer approach basically in this. So first this is nums1 and this is nums2, sorry, nums2. So we will assign one pointer to this starting point, we will assign one pointer to this starting point, and basically we have to merge these arrays in one array which is nums only. We don't have to return any type of array in this question. So first we will create a temporary array to copy nums. We will copy nums whole in this temporary array. This is temp, this is temp. Okay, so we will copy this whole array here, sorry, let me make it clear. Okay, this is nothing but temp. Okay, so in this temp we will copy nums1. Okay, 1 2 3. Okay, and that 0 should be not required here because eventually we are going to override that value. So here what will happen, this p will not start from there, p will start from at this value, from temp starting value. Okay, so what we will do, we will first compare these two values, p and q, the value of p and q. If p is less than q, then we will add p at the first value of nums1. Because both arrays are in sorted order, so we don't have to worry about anything. We will directly assign this value p equal sorry, it will be not here, this side it will be. So nums1 integer at the index of 0 we will assign p, and then we will increment p by plus plus, means plus 1. We will increment p by 1 plus. Okay, so now p will move from here to here, like here p will come to here, p will be here, sorry. So now we will compare, what will happen, we will compare that okay this value is less than 2,
So like 2 is not less than 2, but it will be counted there only. So what we will do, we will place this 2 in this nums, okay, nums1. Then we will compare this value by this value. Then 2 is smaller, so we will place 2 here. Then we will compare, it will be going this side, plus 1, q plus 1. And then we will compare this value with this value. So 3 is less, so here we will be writing 3. Then p will be ending here. So now the remaining values will be shifted to that array. Okay, so basic funda is that. So I hope you all understand that what I am saying. एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है. जैसे कि हम लोगों ने इस एरे को हम लोगों ने टेम्प में ट्रांसफ़र कर लिया, तो क्योंकि हम लोगों को नम्स में ही इनिशियली चेंज करना था. अब हम लोग जब टेम्प में आ गए, फिर हम लोगों ने एक एक करके दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना शुरू किया. मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को 3 पॉइंटर अप्रोच से करने के लिए इसलिए बोला. अभी आप लोग जब कोड मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तब आप लोग समझेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को 3 पॉइंटर अप्रोच से क्यों करवाया है. क्योंकि 2 पॉइंटर तो ये आपको दिख रहे हैं आपके सामने, लेकिन एक पॉइंटर अभी भी मिसिंग है. ये एक पॉइंटर क्या है, ये एक पॉइंटर इसलिए हम लेंगे क्योंकि हम लोग को nums1 की जो वैल्यू है उसका काउंटर भी इंक्रीज करते रहना है, ताकि nums1 भी फिल होती रहे. ओके, सो दिस काउंटर विल बी फॉर nums1 एंड फॉर टेम्प देयर विल बी p एंड देन nums2 देयर विल बी q. ओके, सो हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे. आइए हम लोग कोड करते हैं. ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे पैरामीटर्स में 4 चीज़ें आ रही हैं. 2 एरे, 2 इंटीजर वैल्यू. एरे हम लोग की एक nums1, nums2 और वैल्यूज़ जो कि उनकी लेंथ है. तो सबसे पहले हम लोगों को एक टेम्प डिफाइन करनी है. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हम लोग एक टेम्प डिफाइन करेंगे जो कि एक एरे होगी. जिसका साइज m होगा, क्योंकि हम लोग नम्स को ट्रांसफ़र करेंगे ना कंप्लीटली, इसलिए. अब इस लूप से हमारी ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग अब 3 पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे. पहला पॉइंटर p फॉर टेम्प, दूसरा पॉइंटर q फॉर nums2, तीसरा पॉइंटर k फॉर nums1. ओके, अब हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जिसकी कंडीशंस होगी कि अगर p m से छोटा है और एंड p n से भी छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंपेयर करेंगे कि टेम्प की जो वैल्यू है एट दैट इंडेक्स, क्या वो nums2 की वैल्यू से कम है. अच्छा, अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि जो टेम्प्स p की जो वैल्यू है, टेम्प p की, वो nums2 के जो पहला इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है उससे क्या कम है, अगर वो उससे कम होती है तो हम लोगों को, अगर सॉर्टेड एरे में मर्ज करना है दोनों एरोज को, तो हम लोगों को टेम्प p को एट द वेरी इनिशियल प्लेस पे रखना पड़ेगा. तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, nums1 ये देखिए, अब ये k काउंटर आ गया नम्स के लिए. अब हमने यहाँ पे k काउंटर को यूज़ कर लिया. अब हम लोगों ने उस प्लेस पे उसकी वैल्यू डाल दी. अब जो p है उसका तो मतलब अगर आप p की वैल्यू एज ए इंडेक्स देखें तो अभी एट द वेरी इनिशियल इट विल बी 0. ओके, तो अब जो p है वो तो अंदर आ गया, मीन्स nums1 में आ गया, वो वैल्यू मर्ज हो गई 0 की. अब p को हम फॉरवर्ड मूव करा देंगे, क्योंकि अब हम लोगों को जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करनी है. तो अब हम लोग इस चीज़ को फॉरवर्ड करा देंगे. अब आगे एक इसका एल्स पार्ट लिखेंगे.
जिसमें अगर तो वो वैल्यू छोटी है तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर वो वैल्यू 1 है, बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको नम्स 1 में डाल देंगे, सिंपल, जो कि नम्स 2 की वैल्यू होगी। पहले हमने टेम्प की वैल्यू डाली, अब हम नम्स 2 की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम के को भी प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद जो के की जगह होगी वो तो भर जाएगी। अब हमें के को आगे मूव कराना है। अच्छा ठीक है, अब जब तक तो ये जो p है, जो कि पैरामीटर, जब तक ये m से छोटा रहेगा या जब तक ये n से छोटा रहेगा तब तक तो ये लूप चलेगा। अगर मान लीजिए हमारे में से किसी एक में से टेम्प में या नम्स 2 में कोई वैल्यू बची हुई है, तो उसके लिए हम लोगों को सेपरेटली एक एक लूप चलाना पड़ेगा दोनों एरेज के लिए, कि वो उनकी जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो अपने आप नम्स 1 में आ जाएं। काउंटर्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। काउंटर्स का ध्यान दें कि कब कौन सा काउंटर एग्जीक्यूट होना है, क्या है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। ओके, तो ये कोड हमने लिख दिया है। ओके, लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्यू का काउंटर अपडेट नहीं किया था। मैं कह ही रहा था आपसे कि काउंटर का ध्यान देना है गाइस। सो अब रन करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस चल गए और कोड भी एक्सेप्टेड है। सो ये थी 3 पॉइंटर अप्रोच फॉर मर्जिंग 2 सॉर्टेड एरेज गाइस। सो आई थिंक इट इज़, हाँ तो गाइस रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा था, उसको मैंने सही कर दिया। यहाँ पे थोड़ा बाउंडेशंस की दिक्कत थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरी अप्रोच अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू like it, so please like my video. Thank you.